One can join. Meanwhile, आप लोग भी अपनी notebooks निकाल लो बच्चा. Okay, बच्चा ready? सब लोग आ गए? Have you taken out your notebooks? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good evening. Bachcha, we had started with the chapter electrochemistry yesterday. Do you remember? So we'll continue Yes, ma'am. from there only. Yes. So we'll continue from there. Yesterday we had done that electrochemistry deals with the conversion of electrical energy and chemical energy. That study is known as electrochemistry. And then there are two types of conduction: metallic conduction, in which the electricity is conducted through the metals. For example, iron, copper, silver. When these metals are conducting electricity, it is known as metallic conduction. Whereas when the ionic solutions that dissociate into ions, when those solutions conduct electricity, it is known as ionic conduction. So we did that, and we had discussed the conductivity, specific conductance. Conductivity is the conductance of ionic conductor. Conductivity can be calculated by this formula G, which is conductance into length into में area. So this all we have done. बच्चे एक बार quickly revise कराने के लिए, if someone is joining today, we will be starting with the topic conductivity. मैम एक बार पिछली क्लास के स्लाइड दिखाना. हाँ बेटा, मैं एक बार इसी में दोबारा लिखूंगी, कोई बात नहीं. We are doing chapter electrochemistry. बच्चे एक बार ध्यान से समझते हैं कि what we are talking about. We are saying that if there is this solution, and in this solution there is this water. Okay. In this water, if I take one wire, I connect it using a battery. I have a switch and I have a bulb. And there is this another wire, right? For a circuit to be completed, अगर मैं इसी सर्किट को यहां ड्रॉ करती हूँ, बेटा ये बल्ब तब ग्लो करेगा जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ऐसा पैसेज हो जो पैसेज करंट को अलाउ करे, जो करंट को यहां से यहां लेकर जाए, तभी ये बल्ब ग्लो करेगा. Otherwise this bulb will not glow. Do you agree? Yes, ma'am. Yes, That ma'am. there is. So, bacha, if there is this water only, then the water will not conduct electricity. But in this water, if I add some species for carrying the current, I need the positively charged ions and the negatively charged ions. These positive and negatively charged are called ions. अब ये बेटा positive negative कुछ भी हो सकता है. This can be Na plus, this can be Cl minus, Mg2 plus. कुछ भी एक X plus species होनी चाहिए और कुछ भी एक Y minus species होनी चाहिए. And this is known as ionic conductance. This is known as
ionic conductance. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. Bacha, now we discussed conductivity. What is conductivity? Conductivity is the specific conductance. अलग अलग सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी हमें मेजर करनी होती है. तो बच्चा क्या होता है ना, जो कंडक्टिविटी होती है या जो कंडक्टेंस होता है बेसिकली आपका, कि एक सॉल्यूशन कितने इजीली करंट को पास करेगा. व्हाट इज कंडक्टेंट? कंडक्टेंस इज एबिलिटी टू पास इलेक्ट्रिक करंट. तो जितना इजीली होता है, जितना एबिलिटी होती है, जितना इजीली वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, उतनी ही ज्यादा उसका कंडक्टेंस होता है. अब बच्चा, हमें पता है कि जो कंडक्टेंस है ना, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है. वो डिपेंड करता है कि जो वायर है, उस वायर की लेंथ कितनी है, वो वायर मोटा है या पतला है, अगर मैं वायर की बात करती हूँ. बट अब यहाँ पर तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन की लेंथ या वायर की कैसे बात करते हैं? तो उसके लिए हम ये बात कर लेते हैं कि अगर मैंने ये कंटेनर लिया है, मानो, और इस पूरे कंटेनर में ये सॉल्यूशन फिल्ड है, इस सॉल्यूशन में, इस कंटेनर में ये सॉल्यूशन फिल्ड है, जिस सॉल्यूशन के अंदर आई हैव मेनी आयंस, जिसके अंदर मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले आयंस है. तो बेटा, जो दो वायर्स मैंने कनेक्ट करे हुए, लेट अस से दिस इज वायर 1 एंड दिस इज वायर 2 एंड आई हैव कनेक्टेड देम यूजिंग बैटरी, स्विच, बल्ब. तो ये जो इसकी लेंथ होती है ना, इसको हम L मान लेते हैं, और इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कि ये कितना मोटा है कंटेनर, इसे हम इसका एरिया मान लेते हैं. तो ये तो बात हो गई कंडक्टेंस की. पर बच्चा, कंडक्टेंस तो अब क्या हो गया ना, वो एरिया पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है. तो मानो, इस बात को ऐसे समझो बच्चे, कि अगर हमें रेस लगानी है, ठीक है, कि कौन ज्यादा तेज भाग सकता है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है ना कि सब लोग एक ही पॉइंट पर खड़े हो, तभी रेस का पता चलेगा ना. अगर कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, और सबको यहाँ पहुंचना है, तो क्या पता लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा तेज भागा? Can a race? No, ma'am. For a fair race, everyone should be at the same point. Similarly, बच्चे, when I want to compare that which solution has more conductance, so सबका एरिया और लेंथ मेरे को फिक्स रखना चाहिए, तभी मेरे को कंपेयर करना चाहिए, राइट? Yes, ma'am. तो बेटा, अगर मैं एरिया और लेंथ फिक्स कर देती हूँ और तब मैं कंडक्टेंस मेजर करती हूँ, दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी. दैट इज नोन एज Conductivity. conductivity, also known as specific conductance. It is the conductance of a solution. It is the conductance of a conductor or a solution of the conductor of 1 unit length and 1 square unit area of cross section. क्लियर हुआ बच्चे? कि जब हमारी यूनिट 1 लेंथ कर दी सबकी फिक्स, और सबका 1 स्क्वायर यूनिट एरिया कर दिया, तब जब हमने कंडक्टेंस निकाला, उसे हमने क्या नाम दे दिया? कंडक्टिविटी. और कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कापा से, के कापा. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. यस मैम. अब बच्चा देखो, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी. तो कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी समवेयर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस, राइट? अब लुक हियर, नाउ वी विल डू अनदर टर्म. भी टर्म क्या है वो बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ. इफ अ सॉल्यूशन
X with concentration four molar has a conductivity of 0.16 Siemens, what will be the conductivity of 1 molar solution? बच्चे अगर 4 मोलर सॉल्यूशन की 0.16 है, साइमंस यूनिट होती है, ठीक है, कंडक्टिविटी की। अगर 4 मोलर की 0.16 साइमंस है तो 1 मोलर की कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू कैलकुलेट फॉर 1 मोलर? बताओ बच्चे, ऐसे समझो, 4 चिप्स के पैकेट 16 रुपए के, एक चिप्स का पैकेट कितने रुपए का हुआ? 4. चार। कैसे निकाला? डिवाइड कर। डिवाइड करके निकाला। बेटा अगर 4 मोलर की 0.16 है तो 1 मोलर की कैसे होगी, कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय 4 करेंगे तो निकल जाएगा 0.04। 0.04। बच्चा ये जो आपने करा ना, इसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसे? मोलर मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। लिखेंगे टर्म, टॉपिक लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर लैम्डा। बेटा लैम्डा को कई बुक्स में ऐसे दे रखा होता है, किसी किसी बुक्स में लैम्डा का सिंबल ऐसे दे रखा होता है। दोनों सिंबल ठीक है, ठीक है, बोथ द सिंबल्स आर करेक्ट। आप कोई भी सिंबल चूज कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी इसमें नीचे एम भी लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी क्या हुई? कंडक्टिविटी एक ऐसे सॉल्यूशन की जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो? 1 मोलर हो। कंडक्टिविटी ऑफ अ 1 मोलर सॉल्यूशन और कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन विद 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, conductivity of a solution with 1 molar concentration। क्या ये बात सभी को समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मोलर वर्ड से समझ में आ रहा है ना, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब एक मोल सब्सटेंस की कंडक्टिविटी, जैसे हम कहते हैं ना मोलर मास, यानी कि एक मोल सब्सटेंस का मास। तो मोलर कंडक्टिविटी मींस अगर एक सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तब उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Anyone having any doubt? No, ma'am. नो मैम। ओके No, ma'am. ओके। और बच्चे जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, मोलर कंडक्टिविटी को कैसे निकालेंगे? देख, जो भी कंडक्टिविटी आपको दे रखी है वो कंडक्टिविटी आपको टोटल सॉल्यूशन की दे रखी है, डिवाइड कर दो कॉन्सेंट्रेशन से। देखो जैसे यहाँ पे 4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी तो 4 से डिवाइड कर दिया। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हुआ बच्चा?
Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अब बच्चा जो हम कॉन्सेंट्रेशन नापते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन हम मेजर करते हैं मोलैरिटी में। किसमें करते हैं हम? मोलैरिटी। किसी को याद है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? मोलैरिटी का फॉर्मूला कौन बताएगा जल्दी से? concentration is generally expressed in molarity। किसी को नहीं याद? बच्चे ये टर्म्स आप बोलो नहीं, ये केमिस्ट्री की बेसिक्स है, we cannot forget them। molarity is equals to number of moles of solute divided by volume of solution in liter। याद आ रहा है? ये हमने पढ़ा था। एक Yes, ma'am. मोलैरिटी था, एक मोलैलिटी था। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, मोलैलिटी को स्मॉल एम से। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये बेटा हमारा कम यूज में होता है, ये हमारा ज्यादा यूज होता है मोलैरिटी। ओके। अच्छा, अब साथ साथ नंबर ऑफ मोल्स निकालने का भी फॉर्मूला बता दो। हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? Given mass upon में molar mass. ओके, यस, गुड साक्षी। उज्ज्वला, ऋतिका, समास, सुजीत, याद है आप लोगों को भी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में Molar mass. मोलर मास। अब देखो बच्चे, अब कॉन्सेंट्रेशन इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। देखो हम लोग यहाँ पे लीटर में बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या है? मोल पर लीटर। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके। अभी बच्चा जो हमारी कंडक्टिविटी थी, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी ये बताओ? कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी? साइमन। साइमेंस, वेरी गुड। और क्या थी? साइमेंस थी, वेरी गुड। और साइमेंस के अलावा और क्या थी? Ohm inverse. ओम इनवर्स, वेरी गुड। बेटा हम लोग उसको मेजर कर रहे थे सेंटीमीटर में, तो जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो अगर मैंने कापा लिया है तो वहां पर हम कापा की बात करते हैं सेंटीमीटर में। किस में बात करते हैं कापा की? सेंटीमीटर में। हम यहाँ पे किस में बात कर रहे हैं? लीटर में। तो अब होता क्या है? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाता है? जब हम कापा अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो ये अपॉन में आता है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1000 चला जाता है। अगर आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोल पर लीटर में है, ठीक है, मतलब मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हम लैम्डा एम का क्या याद रखेंगे? कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में सी। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके बेटा, जल्दी से लिखेंगे, देन हम एक क्वेश्चन करते हैं। हो गया मैम। हो गया मैम। ओके चलो बेटा, आई एम राइटिंग 2 क्वेश्चंस, दीज बोथ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर बुक। चलो मैं बुक का एक काम करती हूँ, फोटो लगाती हूँ ताकि आप लोग बुक में वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई भी कर पाओ। एक सेकेंड हम बस
बेटा these are two questions, okay? Okay, let's see question number 1. What must be the concentration of a solution of silver nitrate to have a molar conductivity of 121.4 Siemens या ohm inverse centimeter square per mole and the conductivity of 2.428 into 10 raised to the power minus 3 ohm inverse centimeter inverse at 25 डिग्री सेल्सियस. बच्चा क्या आप इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको क्वेश्चन 2 मान लेते हैं. सॉल्यूशन 1 में कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन टू अस? Molar conductivity. Molar conductivity. मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन. Yes, ma'am. और conductivity भी दी है. Molar conductivity is 121.4 ohm inverse centimeter square mole inverse. And बच्चे what is the conductivity? 2.48. Conductivity is kappa. That is 2.428 8. into 10 raised to the power minus 3 Um, ohm inverse centimeter inverse. What do we need to find? Concentration. Concentration निकालनी है. yes, बेटा what ma'am. is the formula? क्या फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा? K equal to 1000 upon C. लैम्डा m इज इक्वल्स टू कापा इनटू में 1000 अपॉन में c. बेटा अब देखो, ये 1000 हमने कब लगाया था? जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन किसमें है? मोलर में है. तो अगर आप यहाँ पे 1000 यूज कर रहे हो तो आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन किसमें लिखोगे? मोल पर लीटर में लिखोगे. और अगर आप ये 1000 यूज नहीं कर रहे हो तो अब आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखोगे. आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो, अगर ऊपर 1000 है तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर. और अगर आपने 1000 के बिना करा कापा अपॉन में सी, तो तब कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब. अब बेटा देखो, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे विदाउट 1000. अगर आपको मोल पर लीटर में गिवन है तो अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे 1000 लगा के. अब यहाँ पे तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ही निकालनी है, तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अगर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा तो यूनिट हम मोल पर लीटर लिखेंगे. अगर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा तो हम यूनिट मोल पर सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे. इज दिस क्लियर? किसी को भी डाउट है इसमें? अच्छे से ma'am. देखो. इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज लुक एट दिस. श्योर? और बेटा मोल पर लीटर को ही मोलर भी बोलते हैं. कैपिटल एम या मोलर, मोल पर लीटर के लिए. तो बताओ कौन से वाला फॉर्मूला यूज करूं, फर्स्ट और सेकंड? First वाला. Second. चलो फर्स्ट वाला, चलो दोनों से निकाल लेते हैं. बेटा यहां से करूंगी तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कापा इंटू में 1000 अपॉन में लैम्डा एम. यहां से करेंगे तो आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू कापा अपॉन में लैम्डा एन. यहाँ पे देखो कापा कितना है? 2.428 into 10 raised to the power minus 3 multiply by 1000 अपॉन में 121.4. यहाँ पे बेटा हो जाएगा कापा कितना है? 2.428 अपॉन में 121.4. क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. क्या देखो यहाँ पर 10 raised to the power minus 3 से 1000 कट हो जाएगा.
-3 और ये 10 की पावर +3 हो गया ना एक तरीके से। यस मैम। ओके, अब बच्चा इजी करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बचा है 2.428, यहाँ पे बचा है 1 to 1.4। इजी करने के लिए देखो यहाँ से हटाऊंगी ऊपर 10 लगाऊंगी, यहाँ से हटाऊंगी तो नीचे 1000 लगाऊंगी। क्लियर हुआ? ये वाले स्टेप में किसी को डाउट है कि मैम ये 10 और 1000 कैसे आया, कि सभी को क्लियर है? यस मैम क्लियर है। क्लियर है? ओके, अब बेटा ध्यान से देखो, 1214 का डबल है 2428, है कि नहीं? यस मैम। तो बेटा ये कट गया 2 से, 0 से 0 कट हुआ तो 2 अपॉन में 100, यानी कि 0.02 मोलर, या फिर क्या लिख सकते हैं 0.02 मोल पर लीटर। क्लियर हुआ ये? यस यस मैम। मैम। और यहाँ पे करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, 0.02 इंटू 10⁻³ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। इतने पार्ट को तो सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा ना, 0.02। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.02 इंटू 10⁻³ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। चलो बेटा, अब सॉल्यूशन 2, अब आप ये लोग आंसर नंबर 2 आप अपने आप करो। इसमें कॉन्सेंट्रेशन किस में दे रखी है, मोलर में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला 1 या फॉर्मूला 2? सेकंड वाला। फर्स्ट वाला ही। नहीं, फर्स्ट वाला फर्स्ट में। वाला। फर्स्ट वाला मैम। साक्षी सेकंड क्यों करेंगे बेटा? ध्यान से देखो साक्षी ध्यान से देख एक बार बच्चे, मोल पर लीटर या मोलर लिखा हुआ होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? अगर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तभी ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, चलो जल्दी से करेंगे ये वाला आंसर अब, सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या गिवन है? कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी। वेरी गुड। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.05 मोलर। और कंडक्टिविटी? 2 to 3 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर। की नहीं, कंडक्टिविटी निकालनी मैम पहले है। निकालनी है। मोलर मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी गिवन है 223 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बच्चे यहां से भी आप लोग वैल्यूज यूनिट से भी पहचान सकते हो, ठीक है? इतना टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से करना है। 1.115 into 10⁻²⁻2 ओहम इनवर्स। m इज इक्वल्स टू कापा इंटू में 1000 अपॉन में c, तो कापा इज इक्वल्स टू लैम्डा m इंटू में c अपॉन में 1000। तो लैम्डा m कितना है 223 मल्टीप्लाई बाय 0.05 डिवाइड बाय 1000। ऐसे ही करेंगे बेटा। यस मैम। अब देखो 5 3 जा 15 का 5, कैरी में गया 1, 5 2 जा 10 और 1 11। अब 2 से पहले पॉइंट लगाया, इंटू 10⁻³ यूनिट क्या होगी कंडक्टिविटी की, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? क्लियर मैम। बाकी सबको? यस मैम। यस। Yes, ma'am. कैन वी मूव फॉरवर्ड, चले आगे। यस Yes, मैम। ma'am. ओके बेटा, चलो अब हेडिंग है बच्चे, वेरिएशन ऑफ
conductivity with concentration. कि अगर हम concentration इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उससे कंडक्टिविटी पे क्या डिफरेंस पड़ेगा. ठीक है बच्चे, रिमेंबर कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए हमारे पास जो वॉल्यूम और लेंथ है वो फिक्स रहनी चाहिए. हमने बात करी थी ना कि कंडक्टिविटी एक रेस की तरह है जो बताती है कि किसका कंडक्टेंस ज्यादा है, तो सब कुछ सेम पॉइंट पे होना चाहिए. तो कंडक्टिविटी इज मेजर्ड एट अ फिक्स्ड वॉल्यूम. डू यू एग्री? Yes, ma'am. ओके, अब इधर देखो बच्चे, सिर्फ समझना. लेटेस्ट से बच्चे कि हमारे पास ये एक कंडक्टिविटी सेल है जिसका साइज फिक्स्ड है. इसमें यहाँ पे वायर लगा हुआ है और यहाँ पे वायर लगा हुआ है. ठीक है, a solution is filled in this. ओके, और इसमें बेटा यहाँ पे ये आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस. बेटा ये बात आप समझो कि जितने ज्यादा ये आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगी. डू यू एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उतना इजीली इसके लिए करंट पास करना आसान हो जाएगा. बच्चा अगर मैं इसमें डाइल्यूशन करूं, क्या करूं? ऑन डाइल्यूशन, ध्यान से समझना. ओके, डाइल्यूशन मतलब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी. अब बेटा इसमें पानी ऐड होने का स्पेस नहीं है. आप कहोगे मैम इसमें पानी कैसे ऐड करेंगे, इसमें तो पानी ऐड करने का स्पेस ही नहीं है. तो मैं इस डायग्राम को अब ऐसे बनाती हूँ कि ये बीकर है, इस बीकर में सॉल्यूशन है ये. लेकिन जब हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो हम कंडक्टिविटी के लिए इतने ही पार्ट का क्या देखेंगे? आयंस देखेंगे. क्या देखेंगे? इतने पार्ट में आयंस देखेंगे. अच्छा, अब मानो कि इसके अंदर हमने एक होल कर दिया छोटा सा यहाँ पे. अरे तो पूरा ही गायब हो गया. चलो मानो इसमें एक छोटा सा होल है इस साइड भी और इस साइड. ठीक है, और ये इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है. बच्चा अगर मैं इसमें और पानी डालूंगी तो पानी डालने से क्या होगा? ये जो आयंस है ये कम हो जाएंगे क्योंकि कुछ आयंस अब बाहर आ जाएंगे. डू यू एग्री? समझ Yes, में आ ma'am. रही है बच्चे ये बात? Yes, ma'am. मतलब ये जो सॉल्यूशन है, जैसे ऐसे समझो कि अगर हम एक ग्लास पानी लेते हैं तो उस एक ग्लास पानी में अगर सॉल्ट ज्यादा है, अगर मैं उसमें और पानी डालती हूँ तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं, सॉल्ट का इफेक्ट कम हो जाता है.
सिमिलरली बेटा जैसे जैसे मैं डाइल्यूट करूंगी तो आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगे, तो कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. तो लिखेंगे बेटा ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। हो सकता है सॉल्यूशन में ज्यादा आयंस बन गए हो पूरे सॉल्यूशन में, कि भाई NaCl है, पहले अच्छे से नहीं टूट रहा था, और पानी डाला तो और ज्यादा टूट गया, पर इतने पर्टिकुलर पार्ट में तो आयंस कम हो जाएंगे ना बच्चे। तो ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, thus conductivity decreases. So can we say that conductivity is directly proportional to concentration? जितनी ज्यादा concentration होगी उतना ज्यादा conductivity होगी, या we can say that conductivity is inversely proportional to dilution. जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे कंडक्टिविटी कम होती चली जाएगी, और बेटा डाइल्यूशन बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। जो चीज डाइल्यूट होती है जिसमें पानी ज्यादा होता है वो चीज कम कॉन्सेंट्रेटेड होती है। इज दिस क्लियर? ये यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। बच्चा किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना? No, No, ma'am. ma'am. ओके, ओके। नेक्स्ट बेटा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। अभी हमने किसकी बात करी थी, कंडक्टिविटी की। अब हम बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। देखो बच्चे, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। उसे अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, उसे किस बात से फर्क पड़ता है कि ये एक बीकर है, इस बीकर में मेरे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, और इस सॉल्वेंट में मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्वेंट कितना भी हो सकता है, बस इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए मेरे पास, 1 मोल। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल का मतलब क्या होता है बेटा, 6.022 into 10 raised to the power 23 particles. Do you agree? ये पता है सभी को कि 1 मोल का मतलब ये होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा उसने बोला कि मैंने इसमें 1 मोल NaCl डाल दिया, ठीक है, मैंने इसमें 6.022 into 10 raised to the power 23 particles NaCl के डाल दिए। बेटा NaCl पूरी तरह टूट जाएगा इसमें, अच्छा। अब मैंने आपको एक चीज दिखाती हूँ, उससे शायद आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। एक सेकेंड रुकना, मैंने कल आपको जो दिखाया था ना,
बच्चा स्क्रीन तो सबको दिख रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है, जस्ट 1 मिनट लगेगा, रुको। ओके, मैं इसका माइक्रो वर्जन देख रही हूँ। और मैंने इसका वाटर रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब बेटा मैंने इसमें NaCl डाला। देखो पूरा NaCl टूट गया। Yes, ma'am. चलो मैं इसमें और NaCl डालती हूँ। अभी देखो बेटा, अगर पानी कम है तो क्या सारे NaCl के पार्टिकल्स टूट पा रहे हैं? Yes, ma'am. No, ma'am. नहीं। पूरे नहीं हो क्योंकि रहे मूव मैम। कर पा रहे हैं। अभी देखो, अभी मैं थोड़ा वाटर ऐड करती हूँ और अभी देखना क्या हो रहा है, और तब बताना आपकी किस स्टेट में अभी देखो अभी क्या हुआ। सभी NaCl के पार्टिकल्स अच्छे से टूट गए। Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, जैसे जैसे ma'am. मैंने वाटर ऐड करा वैसे वैसे डिसोसिएशन इंक्रीज हो गया। जो आयंस की स्पीड है वो भी इंक्रीज हो गई। तो बच्चा पानी डालने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई होगी या डिक्रीज हुई होगी? मोलर कंडक्टिविटी। अगर मैं सॉल्ट का अमाउंट फिक्स कर दूं, अब इसमें मुझे अमाउंट से फर्क नहीं पड़ रहा ना। कंडक्टिविटी में तो मेरे पास एरिया फिक्स था कि मुझे इतने एरिया की बात करनी है। मोलर कंडक्टिविटी में मुझे एरिया की नहीं, मुझे टोटल सॉल्यूशन की बात करनी है। तो बेटा जैसे जैसे मैं वाटर इंक्रीज करूंगी वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? Increase. इंक्रीज करेगी। वेरी गुड। मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी? Increase करेगी। अच्छा अभी चलो, अभी मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, ठीक है। अभी आपको ये वाला दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो बच्चे, बल्ब बच्चे से ग्लो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर Na+Cl- जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग सेपरेट हुए हैं। अब अगर मैं इसकी जगह शुगर ले लूं, इज द बल्ब ग्लोइंग? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Because there is no positive part, no negative part, nothing. So with the sugar it is not glowing. With sodium chloride it is glow. अब बच्चा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी आपको NaCl की फॉर्म में नहीं दिखेगा, सब Na+Cl- की फॉर्म में टूट गए। बट व्हाट इफ आई टेक एसिटिक एसिड? अब ध्यान से देखो बच्चे, पॉजिटिव आयंस आर रेड वन, नेगेटिव आयंस आर ब्लू वन, और जो मॉलिक्यूल्स नहीं टूटे हैं दैट आर द पर्पल वन। तो क्या आपको इसमें दिख रहा है कि इसमें सारे पार्टिकल्स नहीं टूटे? कुछ कुछ पर्पल पार्टिकल्स भी है, कुछ ही पार्टिकल्स डिसोशिएट हुए हैं। Yes, क्या ma'am. ये बात आपको Yes, दिख रही ma'am. है Yes, ma'am. सभी को? और आप इसमें देखो बल्ब ग्लो तो कर रहा है, बट जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें कम डिसोशिएट हुए। तो अब हम इसमें क्या करते हैं ना बच्चे, हम इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर देते हैं,
ठीक है, मैं देखती हूँ इसमें वाटर ऐड करने का ऑप्शन है क्या। अच्छा, चलो वाटर ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, बट मैं इसको थोड़ा कम करती हूँ। अभी देखो, अभी पार्टिकल अच्छे से मूव कर पा रहे हैं कि जब ज्यादा पार्टिकल से तब ज्यादा अच्छे से मूव कर पा रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चा कि अगर मैं इसमें और वाटर डालूंगी तो और वाटर डालने से क्या होगा, ये जो अभी जुड़े हुए हैं ये भी टूट जाएंगे, आयंस बना देंगे ये, अगर इनको और पानी मिल जाए तो जो अभी नहीं टूट पा रहे वो और पानी मिलने के बाद और अच्छे से टूट जाएंगे। Yes, ma'am. यस, तो भी मोलर कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की भी इंक्रीज करती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की भी इंक्रीज करती है। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में पानी ऐड करने का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ देखो, यहाँ पर बहुत कम पानी के अंदर भी वो अच्छे से टूट पा रहे थे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें डिफरेंस ज्यादा आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे that molar conductivity increases with increase in dilution. Molar conductivity increases with increase in dilution. Okay. Okay, ma'am. बेटा आज यहीं तक करते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, बट द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज but the extent of increase is more in weak electrolyte than in strong electrolyte। मतलब strong electrolyte में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके okay bacha, then this will be all for today। okay, take care, bye bache। Yes, ma'am. Bye, ma'am. Good night. okay, good night bache, bye।